بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کاروان سرائے، حصہ چہارم، کردار غزالہ گجی، کاروان سرائے کی کاؤنٹر گرل، ولسن بیرا، گوری رنگت کا بیرا، یاسین بیرا، خوبصورت نوجوان، کرم داد بیرا، مضبوط کاٹھی کا آدمی، ہاؤزی بیرا، چھوٹے قد اور گتھے جسم کا مالک۔ پلنگ پر نائٹ سوٹ پہنے ایک معزز آدمی لیٹا ہے، دھڑ تک کمبل اوڑھ رکھا ہے اور انگریزی اخبار کا مطالعہ کر رہا ہے۔ زمین پر ہاؤزی بیٹھا اس کے بوٹ پالش کر رہا ہے۔ برش رکھ کر وہ اس پر کپڑا مارتا ہے اور پھر کہتا ہے، ہاؤزی ہو گئے پالش؟ مہمان ہاؤزی بوٹ پالش ہو گئے؟ ولسن اخبار ہٹا کر، یہ تمہارا بات کرنے کا طریقہ ہے بیرا؟ ہاؤزی ہاں۔ ولسن کیا نمبر ہے تمہارا؟ ہاؤزی خاموش ہے۔ ولسن آئی سے واٹس یور نمبر؟ ہاؤزی میں اب جاؤں جی؟ وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ ولسن تمہیں سر کہنا کسی نے نہیں سکھایا کیا؟ ہاؤزی یس سر۔ ولسن تو اس طرح بکواس کرو، میں تمہاری شکایت کر دوں گا مینیجر سے۔ ہاؤزی میں اب جاؤں سر؟ ولسن وہ ڈریسنگ گاؤن دو ہمارا، ادھر ہے اس کھونٹی پر۔ اے نہیں، وہ دیکھو اس کبرڈ میں ہوگا شاید۔ ہاؤزی الماری کھول کر اس میں سے ڈریسنگ گاؤن نکالتا ہے۔ ولسن بازو پھیلا کر بیٹھ جاتا ہے۔ ہاؤزی گاؤن لے کر کھڑا ہے۔ ولسن پہناؤ پہناؤ، دیکھتے کیا ہو؟ ہاؤزی یس سر، اس کو گاؤن پہناتا ہے۔ ولسن کب سے اس ہوٹل میں ملازمت کر رہے ہو؟ ہاؤزی تم کو پتہ ہی ہے، تمہارا بیرے لگنے سے 6 مہینے پہلے کا یہاں کام کر رہا ہوں، میں پہلے آیا تھا آفٹر یو کم۔ ولسن کس سے بات کر رہے ہو؟ اپنی ملازمت کی فکر ہے کہ نہیں؟ ہاؤزی یس سر۔ ولسن کون بیرا ہے؟ ہاؤزی آئی ایم دی بیرا سر۔ ولسن اور وزٹر کون ہے؟ ہاؤزی یو آر دا وزٹر سر۔ ولسن اندر سے چلیمچی لاؤ، چھوٹی چلیمچی غسل خانے سے۔ ہاؤزی یس سر۔ اندر جاتا ہے اور ولسن پھر اخبار دیکھنے لگتا ہے۔ ہاؤزی واپس آتا ہے تو ولسن انگلی کے اشارے سے کہتا ہے نیچے رکھو۔ ولسن ایک گلاس پانی لاؤ۔ ہاؤزی پھر غسل خانے میں جاتا ہے اور پانی کا گلاس لاتا ہے۔ ولسن اسی طرح اخبار دیکھتے ہوئے پانی کا گلاس لیتا ہے اور غرغرے کرتا ہے، پھر گلاس اسے واپس دے دیتا ہے، جسے وہ غسل خانے میں رکھ آتا ہے۔ پھر وہ چلمچی اٹھا کر اندر لے جاتا ہے، واپس آ کر پوچھتا ہے، ہاؤزی کوئی اور کام؟ ولسن یہ تم ہر بار سر کہنا کیوں بھول جاتے ہو؟ ہاؤزی اینی کام سر؟ ولسن دیکھو تم یوں کرو، وہ جو ہے نا اپنا کیا نام ہے۔ یاسین ناشتے کی ٹرے لے کر اندر داخل ہوتا ہے۔ دستک۔ ولسن یس کم ان۔ یاسین گڈ مارننگ سر۔ ولسن گڈ مارننگ، ہاؤ آر یو بیرا یاسین؟ یاسین تھینک یو سر، آئی ایم ویری ویل تھینک یو۔ ناشتہ تپائی پر رکھتا ہے۔ ولسن میرا خط پوسٹ کر دیا تھا؟ یاسین یس سر۔ ولسن میری کوئی ڈاک آئی ہے نیچے؟ یاسین نو سر۔ ولسن اچھا بھائی تم جاؤ بیرا۔ ہاؤزی جاتا ہے۔ ٹھہرو۔ ہاؤزی ٹھہرتا ہے۔ یہ تمہارا جانے کا طریقہ ہے؟ یاسین بھائی صاحب کو سلام کر کے جاتے ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ ہاؤزی سلام سر۔ ولسن ہاؤزی جاتا ہے۔ ولسن پھر روکتا ہے۔ ٹھہرو، تکیے تلے سے یہ لو۔ ہاؤزی کوئی بات نہیں صاحب، آپ رکھیں۔ ولسن کیا مطلب؟ ہاؤزی حصہ پتی ہی آنا ہے مجھ کو، کون سا سارا مل جانا ہے، تم رکھو اس کو۔ ولسن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ واٹ از ہی سیئنگ؟ یاسین لے لو بھائی، صاحب خوش ہو کے دے رہے ہیں، سلام کرو اور بخشش لے لو، یہ تمہارا حق ہے۔ ہاؤزی نوٹ لے کر ہاتھ سے سلام کرتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے۔ ولسن یہ کیا ہو گیا ہے اس کو، مس سالچی نعمت اللہ کے بیٹے کو؟ یاسین یہ کیا کرے بیچارہ، تمہاری بیرا گیری جو کرنا پڑ رہی ہے۔ ولسن کیوں، ہم اس ہوٹل کے معزز مہمان نہیں ہیں کیا؟ یاسین وہ تو ہیں سر، آپ بالکل ہیں، لیکن پھر بھی آپ اصل میں تو اس ہوٹل کے بیرے ہیں۔ ولسن کیا ہم نے کرایہ نہیں دیا اس ہوٹل کا، پورے 50 روپے؟ یاسین ٹھیک ہے سر، لیکن اس کو تو معلوم ہے کہ۔ ولسن یہ لیکن کیا کر رہے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ ہم ایسی گفتگو سننے کے عادی نہیں ہیں۔ یاسین آئی ایم سوری سر۔ ولسن وہ کرسی لے لو اور بیٹھو یہاں ہمارے پاس۔ یاسین تھینک یو سر، کرسی لے کر اس کے پاس بیٹھتا ہے۔
विल्सन, क्या तुम हमारी इज्जत नहीं करते हो? यासीन, करता हूँ सर, मैं तो आपकी दिल से इज्जत करता हूँ, लेकिन ये हाउसी कमबख्त अनपढ़ है। यह आदमी को उसकी असल वैल्यू पर लेता है, फेस वैल्यू पर नहीं। उसे मालूम नहीं कि आदमी की इज्जत उसके पेशे और उसकी हैसियत की वजह से होनी चाहिए, ना कि उसकी असल शराफत की वजह से। ये बेवकूफ़ है सर। विल्सन, हमने इसे माफ किया, छोटे घराने का मालूम होता है। यासीन, बहरा है जी बेचारा। विल्सन, तुम भी तो बहरे हो यासीन, लेकिन तुम ऐसी बातें नहीं करते हो। यासीन, मैं अक्लमंद बहरा हूँ सर, जमाने की ऊंच नीच को खूब समझता हूँ। विल्सन, हमारा बिल बन गया? यासीन, वो तो जब आप चेकआउट करेंगे सर, तो आपको काउंटर पर मिल जाएगा। विल्सन, लेकिन हम अपना बिल यहाँ कमरे में चाहते हैं। यासीन, वेरी वेल सर, कमरे में मिल जाएगा। विल्सन, तुम पूछो हमने ये 50 रुपए कैसे हासिल किए? यासीन, यस सर। विल्सन, यस सर नहीं, ये पूछो कि हमने ये 50 रुपए कैसे हासिल किए। यासीन, मैं पूछता हूँ सर कि आपने ये 50 रुपए कैसे हासिल किए। विल्सन, बेतकल्लुफी से पूछो कि विल्सन तुमने ये 50 कहाँ से हासिल किए। यासीन, अबे विल्सन, ये 50 रुपए कहाँ से मारे बे तूने? विल्सन, वो मोटा साहब नहीं था, 132 वाला। यासीन, वो सक्खर का मोटा लंबा गंजा? विल्सन, हाँ हाँ वही, जो 1 पाउंड दबा के चलता था, उसके खिसकाए थे। यासीन, अबे वो कैसे हराम खोर? विल्सन, ले, अब सारे भेद तुम्हें बता दूंगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा। यासीन, और अगर कहीं आगा जुल्करनैन को पता चल गया तो? विल्सन, उसको कैसे पता चलेगा, धड़ियल को? यासीन, तेरी जबानी, और कैसे, तू हर एक को बताता फिरेगा और बात उस तक पहुंच जाएगी। विल्सन, पहुंच जाए, मैं उसकी क्या परवाह करता हूँ, साले की, हराम का माल खा खा कर सांड बना फिरता है। यासीन, आहिस्ता बोल विल्सन, दीवारों के भी कान होते हैं। विल्सन, मैं किसी से डरता हूँ, किसी का दिया खाता हूँ जो आहिस्ता बोलूं? मैं तो सच्ची बात कहूंगा, चाहे कोई मुझे तोप के सामने रख कर उड़ा दे। मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ यासीन, हक की बात और सच्ची बात कहने वाला हूँ, समझे? यासीन, बड़ा हौसला है यार तुम में। विल्सन, 3 दिन की तो मैंने छुट्टी की अर्ज डाल रखी थी, ऊपर से ये मिल गए 50 रुपए। पहले तो सोचा कि आधी तनख्वाह और 50 ये मिलाकर गांव ले चलूं, फिर दिल ने कहा हौसला कर और देख बहारें जमाने की। 50 ये और 4-5 तनख्वाह के निकाल कर लगा दे दिल की हसरतों पर, और कर ले इसी कारवान सराय में कमरा बुक 1 दिन के लिए। यासीन, तूने अच्छा ही किया प्यारे जो ये हसरत निकाल ली, वरना हमें तो 10 बरस हो गए यहाँ नौकरी करते, हमारा तो हौसला नहीं पड़ा। विल्सन, तू दिल का बूदा है यासीन, तेरा कभी हौसला नहीं पड़ेगा, तुझे कभी हिम्मत नसीब नहीं होगी। यासीन, बस अल्लाह मियाँ ने नहीं दी ये चीज़, अब किस्मत के लिखे को कौन मिटा सकता है। गाँव कब जा रहा है? विल्सन, 12 बजे चेकआउट करूँगा, 1 बजे की लारी पकड़ूंगा, 2 दिन की छुट्टी बाकी है, ले ये अंडा टोस्ट खा। यासीन, नहीं यार, मेरा इस वक्त जी नहीं चाहता। विल्सन, साले नमरूद ने छोटे अंडे फ्राई करके भेजे हैं, इसको पता होगा विल्सन साहब के कमरे में जा रहे हैं। यासीन, सभी जानते हैं, सारे होटल को खबर है कि तू होटल में ठहरा हुआ है। विल्सन, हमें सलाम करने कोई नहीं आया। यासीन, कुछ तो खौफजदा हैं, कुछ झींपे हुए हैं, कुछ हसद में मरे जा रहे हैं, और कुछ इस अनोखी खबर को सुनना ही नहीं चाहते। विल्सन, ये सब लोग बदनसीब हैं, चाय बनाओ मेरे लिए। यासीन चाय बनाने लगता है तो दरवाजा पर दस्तक होती है। यस प्लीज। करमदाद अंदर दाखिल होता है, उसके हाथ में ट्रे है जिसमें बिल है। वो अल्लाह रखा क्यों नहीं आया बिल लेकर? करमदाद, कौन जनाब किबला काबा हजूर परवर? विल्सन, अल्लाह रखा हाउजी। करम, वो हजूर किसी ज़रूरी काम से तार घर गया है। विल्सन, किसने भेजा है उसे तार घर? करम, मिस साहिब ने भेजा है जनाब, डबल पेमेंट हो गई थी एक बिल की, वो ठीक करवाने गया है। यासीन, कौन मिस साहब? करम, मिस फिया, अपनी टेलीफोन ऑपरेटर। यासीन, अदब से नाम लिया करो उनका। विल्सन, हाँ भाई अदब से, समझे? यासीन साहब के दिल पर चोट लगती है। यासीन, वो तो है। विल्सन, सुना है तुम्हें एफए का इम्तिहान दिलवा रही है। यासीन, नहीं यार, कैसी बातें करते हो,
کہاں ایف اے، کہاں ہم اور کہاں وہ؟ ولسن جھوٹ کہتے ہو بیرا۔ یاسین نو سر، نو سر۔ ولسن سیدھے کھڑے ہو جاؤ، چھوڑ دو یہ کرسی۔ یاسین یس سر، کھڑا ہو جاتا ہے۔ ولسن بیٹھو 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 یار کرم داد، کھڑے کیوں ہو؟ کرم جی جناب والا، قبلہ و کعبہ حضور علی۔ ولسن ابے حضور علی کے بچے، یہاں بیٹھو آرام سے اس جگہ۔ یاسین بیٹھتے ہوئے ہاں ہاں اپنا یار ہے، بیٹھو بیٹھو، پوچھ کیا رہے ہو؟ ولسن تم نہیں، میں اس کو کہہ رہا ہوں۔ یاسین بدک کر یس سر۔ کرم بس ٹھیک ہے یار، میں اسی طرح ٹھیک ہوں۔ یاسین جس طرح صاحب فرما رہے ہیں اسی طرح کرو، گیسٹ از آلویز رائٹ۔ کرم بیٹھتے ہوئے شکریہ جناب والا۔ ولسن اٹھ کر غسل خانے میں جاتے ہوئے کوئی ٹپا سناؤ اچھا سا، جس میں درد ہو، سوز ہو، دکھی دل کی پکار ہو، بہاروں کا وہ ہو اور خزاؤں کا یہ ہو۔ یاسین اور اس میں ایک رنگ ہو، کیفیت ہو، صاحب حیثیت سمجھے یہ میرا دکھ ہے، اور مفلوق الحال نیم جان سمجھے یہ میرا دکھ ہے، دونوں کے درمیان ایک رشتہ پیدا ہو جائے، ایک ربط باہمی کے آنکڑے مل جائیں، ساری کائنات جھوم اٹھے۔ ولسن اندر سے ساری کائنات نہیں گدھے، سارا ہوٹل جھوم اٹھے۔ یاسین یس سر۔ کرم گاتا ہے اور اس کا ٹپا پورے ہونے پر ولسن غسل خانے سے سیر کرتا ہوا برآمد ہوتا ہے، اس کو مزید گانے سے روک دیتا ہے اور کہتا ہے ولسن تم کو کوئی گانا آتا ہے یاسین؟ یاسین پہلے آتا تھا جی بچپن میں، پھر میرے والد صاحب کی تبدیلی ہو گئی تھل میں، وہاں دھول بہت تھی سر، اور ہم بچہ لوگ ریت میں کھیلا کرتے تھے، بس اس وقت سے گلا بیٹھا ہوا ہے، بہت اٹھایا سر، لیکن بیٹھا ہوا گلا اور بیٹھا ہوا افسر کبھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھتا، چاہے گلا کاٹ دو۔ ولسن بہت باتیں کرنے لگے ہو، سمجھے؟ یاسین یس سر۔ ولسن وزٹرز کے ساتھ زیادہ بے تکلف ہونے کی ضرورت نہیں، روم سروس لگاؤ ذرا۔ یاسین ویری ویل سر۔ ٹیلی فون لگاتا ہے اور کہتا ہے دس از روم نمبر 32، صاحب بات کرنی چاہتے ہیں۔ ولسن چونگا لیتا ہے۔ ولسن بیرا ہاؤزی اور مس گجی کو اوپر بھیجو، اور دیکھو ایک ماچس بھی بھیجو ساتھ میں، تھینک یو۔ کرم ماچس تو یہ ہے میرے پاس، تو نے رکھنی ہو تو رکھ لے اپنے پاس۔ ولسن نہیں، تمہاری ماچس کی ضرورت نہیں، بیٹھو یار، تم کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ یاسین بیٹھتے ہوئے بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے تھک گیا تھا۔ ولسن کہیں میں نے تو نہیں کہا تھا کہ… یاسین تو بڑا بدذات ہے ولسن، تیرے جیسا کمینہ آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اس کے بعد شاید… ولسن دیکھو پیارے، یہ برتن اٹھا اٹھا کر اور میز پونچھ پونچھ کر اور پالش کر کر کے ہاتھ جھامے جیسے ہو گئے، ایک دن کی باچاہت ملی ہے، ہم کو بھی کر لینے دے، ابھی ایک گھڑی میں چیک آؤٹ کرتا ہوں تو پھر وہی بک بک جھک جھک، اور پھر وہی اوپر نیچے دائیں بائیں، بیرا آؤ بیرا جاؤ۔ یاسین یہ زندگی تو ایسے ہی کٹے گی پیارے، آگے چل کر کچھ آرام ملے گا، کیوں بھائی کرم داد، کیا خیال ہے تیرا؟ کرم ٹھیک ہے بھائی، میں تو کہتا ہوں میری بہن کا دماغ ٹھیک ہو جائے، پھر سب خیر ہی خیر ہے، بولتی نہیں بالکل، مجھ سے بھی بات نہیں کرتی، بس دیکھے جاتی ہے میری طرف اور مسکرائے جاتی ہے۔ ولسن ٹھیک ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی، تم فکر نہ کرو۔ یاسین اور اگر خدا نہ خواستہ اس کی حالت ٹھیک نہ ہوئی تو تم یوں کرنا کہ ذرا دل کڑا کر کے… اتنے میں گجی اور ہاؤزی داخل ہوتے ہیں۔ ہاؤزی کے پاس ماچس ہے۔ گجی میں نے تمہیں پہلے بھی لاکھ مرتبہ سمجھایا ہے اور اب پھر بھی کہتی ہوں، لیکن تم ایسے کوڑ دماغ ہو کہ کوئی بات تمہارے ذہن میں ہی نہیں آتی۔ ہاؤزی میں نے کچھ نہیں کیا مس صاحبہ، آپ چاہے غلام رسول سے پوچھ لیں، ہی از اے گڈ مین، سچی بات بتائے گا آپ کو۔ ولسن ماچس لے آئے؟ ہاؤزی یہ دکھائی نہیں دے رہی۔ ولسن مس گجی کیا ہے؟ ولسن یہ تم لوگوں کے بولنے کا طریقہ ہے، اس طرح سے بات کی جاتی ہے وزٹر سے؟ گجی اب اور کس طرح سے کریں؟ ولسن پہلے میری بات کا جواب دیجیے۔ گجی تمہاری بات فضول ہے بالکل، نہایت اہم کانا۔ یاسین مس گجی، گیسٹ از آلویز رائٹ۔ گجی لیکن یہ گیسٹ کہاں ہے؟ یاسین ہی از دا آنریبل گیسٹ اینڈ گیسٹ از آلویز رائٹ۔ گجی یس سر۔ ولسن آپ کے یہاں کی سروس بہت خراب ہے۔ گجی سوری سر۔ ولسن بیرے بڑے بدتمیز ہیں آپ کے ہوٹل کے۔ یاسین اور کرم داد یس سر۔
विल्सन, इन सब को निकाल कर नए भर्ती किए जाएं बेरे, नहीं तो हम जैसे मुअज़्ज़िज़ मेहमान यहाँ नहीं ठहरेंगे। करम, अगर नए भर्ती किए गए ना बेरे, तो बच्चू सबसे पहले तेरा नाम कटेगा। विल्सन, किससे बात कर रहे हो? करम, विल्सन, मैं पूछता हूँ किससे बात कर रहे हो? यासीन, करमदाद। करम, जी जनाबे अली हजूरे वाला किबला व काबा। यासीन, गेस्ट इज ऑलवेज राइट। गज्जी, बिल्कुल ठीक है जी, ये तो असूल की बात है। यासीन, और जी असूल के साथ ही सारा कारोबार बंधा है। विल्सन, हाउजी, हमारा सामान निकालो अंदर से। हाउजी कबर्ड में से सामान निकालता है, एक बैग और एक फ्ली टोपी लेकर चलने लगता है। ठहरो, वो स्लीपर कहाँ है हमारे? हाउजी, अंदर हैं, इनसाइड। विल्सन, उनको भी उठाओ और ले चलो नीचे काउंटर पर मिस गज्जी। गज्जी, जी। विल्सन, हम चेक आउट कर रहे हैं। गज्जी, ठीक है जी, नीचे चलेंगे आप? विल्सन, हाँ नीचे। करम, वो आप कह रहे थे कि अगर मेरी बहन का दिमाग ठीक ना हुआ तो? यासीन, वो नहीं मैं कह रहा था, मैंने कहा था मिस साहेब कि अगर खुदा न खास्ता करमदाद की बहन की सेहत ज़्यादा ख़राब हो गई तो अपने आका जुल्करनैन साहब से कहेंगे, वो उसकी माली इमदाद कर देंगे। विल्सन, कौन कर देंगे? यासीन, माली इमदाद। विल्सन, वो कंजूस मक्खी चूस बदबख्त दर्दील, वो तो कन्नी नहीं देगा। हम में से किसी को चाहे हम उसके सामने तड़प तड़प कर मर जाएं। करम, तौबा जी, उसको क्या, बस अपना होटल चल रहा है मज़े से, घर बैठे रुपए के तोड़े आ रहे हैं, उसको क्या परवाह, कोई मरे कोई जिए। गज्जी, बिल्कुल, हम गरीबों की तरफ तो आंख उठाकर भी नहीं देखता। विल्सन, आप पर तो काफ़ी मेहरबान है। गज्जी, कोई भी नहीं। यासीन, नहीं जी, आप तो फिर भी खुशकिस्मत हैं, आपकी तो डायरेक्ट अप्रोच है उन तक। गज्जी, वो तो मुझे काम की गर्ज से उनके पास जाना ही पड़ता है। यासीन, वैसे तबीयत के अच्छे हैं। करमदाद, गज्जी और विल्सन इकट्ठे बोलते हैं, लानत। विल्सन, तुम उसके बड़े पिट्ठू बने फिरते हो, तुमको क्या मिल गया? करम, कोई खुफिया तरक्की दे दी होगी इसको। यासीन, हम तो नमक ख्वार हैं आगा साहब के। विल्सन, ये तो उसने अपने मामू का कारोबार हथियाया है, 1 लाख रुपया तो गबन कर गया अपने मामू का और 25,000 ले उड़ा अपने बहनोई का। करम, लंडे का सूट पहनता है, एक दिन दिलदार मिसालची ने देख लिया था इसको, सूट बदल बदल कर देख रहा था। गज्जी, जब भी इसके सूटों से सेली सेली बू आती है। विल्सन, वो गांठें बंद बंद के आती है ना वलायत से, तो समंदर की नमी जम जाती है अंदर, मुर्गाबी की सी बू आने लगती है इंसान से। हाउजी आकर, चल भाई तेरा सामान नीचे पहुंच गया। विल्सन, ये किससे बात कर रहे हो? यासीन, हाउजी और करम, तुमसे और किससे? यासीन, बिल कट गया, सामान नीचे पहुंच गया धप्पा मारकर, अब चल निकल यहाँ से। विल्सन, अभी तो पेमेंट करनी है। एंड व्हाट इज दिस? यासीन, तो कर दीजिए सर, आई एम सॉरी। विल्सन, ये लीजिए। 50 का नोट गज्जी को देता है, वो लेने लगती है तो हाथ पीछे कर लेता है, नीचे चलकर पे करूंगा। गज्जी, चलिए सर, आगे आगे चलती है। विल्सन, अल्लाह रखा। हाउजी, यस सर। विल्सन, ये वर्दी मैली है तुम्हारी, इसको ठीक साफ रखा करो। अल्लाह रखा खून की घूंट पीता है, और तुम, ये तुम्हारा नाम गलत लगा है, इसको टाइट लगा कर रखा करो। यासीन, यस सर। विल्सन, सलाम करो। यासीन, सलाम सर। विल्सन, और तुम बेरा करमदाद अपनी हजामत बनवा कर रखा करो, समझे, ये बूदे ठीक नहीं है। झटका देता है, फिर हमने तुमको इस हालत में देखा तो होटल में नहीं ठहरेंगे। करमदाद, बहुत बेहतर जनाबे आली किबला व काबा। विल्सन, तीनों सलाम करो। तीनों सलाम साहब कहकर सलाम करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, टिप तुमको नीचे चलकर मिलेगा, चलो आओ मेरे साथ काउंटर पर। गुनगुनाता हुआ चलता है, उसके पीछे तीनों चले आते हैं। कमरा खाली, फिर दरवाज़ा खोलकर हाउजी अंदर आता है और आकर एक लात पलंग को मारता है, फिर कहता है, हाउजी, लड़कियों के स्कूल में 2 टके का खानसामा था तुम्हारा बाप, हर चीज में बेईमानी, अंडा मुर्गी में बेईमानी। हेड मिस्ट्रेस साहिबा को कटे का गोश्त खिलाता रहा और बोलता रहा ये खीरे बकरे का मीट है। 154 रुपीज मेरे फादर से उधार लिया, अब तक नहीं दिया। होटल में रहने का शौकीन है, 50 रुपीज पर कमरा लिया, मेरे फादर को उधार वापस नहीं किया। बेईमान फैमिली।
हल्दी वाटर और सॉल्ट पोटैटो घोल कर लड़कियों को खिलाता रहा इसका फादर, हमसे सर्विस लेता है, टोटली बेईमान, 100% बेईमान। और फिर बाहर निकल जाता है। 5 से 7 सेकंड तक कमरा खाली रहता है। फिर गज्जी विल्सन को गर्दन से पकड़े अंदर धकेलती लाती है। विल्सन, ओ जी मिस साहिबा, प्लीज मेरी बात तो सुनिए, मेरी छुट्टी है जी आज की भी। गज्जी, मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी, सीधी तरह से कमरा साफ करो। विल्सन, वो जी मेरी आज की भी छुट्टी है, मैंने एक और अर्जी दी थी मैनेजर साहब को। गज्जी, वो अभी तक मेरे काउंटर पर नहीं पहुंची, जब मंजूर होकर आ जाएगी देखा जाएगा, अभी तुम इस कमरे को साफ करो। विल्सन, ये काम नहालों का है मिस साहिबा, बेरा लोग कब सफाई करते हैं। गज्जी, ये मेरे ऑर्डर हैं, तुमको सफाई करना होगी, नहीं तो मैं मैनेजर साहब से शिकायत कर दूंगी। विल्सन, कोई और कमरा साफ करा लीजिए जी। गज्जी, यही कराऊंगी और तुमको इसी को साफ करना होगा। विल्सन, इसमें सफाई करते हुए मेरे आंसू से निकलते हैं मिस साहिब। गज्जी, जरा तुम्हें भी पता चलना चाहिए, और जो सलूक तुमने हमसे किया है जरा उसकी खबर तुमको भी होनी चाहिए। विल्सन, उस वक्त तो मैं दौलत के नशे में था मिस साहब। गज्जी, दौलत के नशे में थे तो यहीं से खिदमत लेना थी, किसी और होटल में दफा हो गए होते। विल्सन, वो जी आपने करते मेरी खिदमत में साहब। गज्जी, वो तो हम मजबूर थे, इस वक्त तुम्हारी हैसियत ही ऐसी थी कि हमें तुम्हारी इज्जत करना पड़ रही थी। विल्सन, वैसे आप दिल से कर रहे थे जी मेरी इज्जत सब लोग। गज्जी, हाँ भाई वो तो कर रहे थे, लेकिन तुम अब ज्यादा बकवास ना करो और सीधी तरह से कमरा साफ करो। विल्सन, मैं वर्दी पहना हूँ जी। गज्जी, कोई जरूरत नहीं वर्दी शर्दी की, और जाते हुए अच्छी तरह से कमरा साफ करना, इसमें से बू आ रही है। गजाला चली जाती है और उसके जाने के बाद विल्सन आहिस्ता आहिस्ता ब्रश करने लगता है। यासीन दाखिल होता है और अंदर आकर कहता है, यासीन, विल्सन। विल्सन, हाँ। यासीन, खड़े होकर बात करो यार। विल्सन खड़ा होता है और यासीन उसके हाथ से ब्रश लेता है। ये तुम्हारा ब्रश पकड़ने का तरीका गलत है, इस तरह पकड़ते हैं, उसे मार कर, समझा। विल्सन, इसी तरह तो पकड़ा था। यासीन, गलत पकड़ा था, फिर से उसे मारा, समझा। विल्सन, समझ गया। ब्रश लेकर फिर फर्श साफ करने लगता है। यासीन पलंग पर से, वैसे सर आप काफी बेशर्म इंसान हैं। विल्सन, हाँ जी। यासीन, इसी कमरे की झाड़ू भाड़ू कर रहे हैं जहाँ शहजादे की तरह लेटे थे। हाउजी खाली ट्रे लेकर अंदर दाखिल होता है और विल्सन के सर पे ट्रे मारता है और मेज तक जाता है, वहां से एश ट्रे उठाकर लौटता है, फिर ट्रे मारता है। विल्सन, अल्लाह रखे बाज आजा। हाउजी, कमरा साफ कर अच्छी तरह से, नो डस्ट, नो पेपर, नो सिगरेट, नो टोटा, नो टोटा, नो टोटा। विल्सन खड़ा होकर, इसका बाप मिसालची था लाल कुर्ती बाजार में, पत्थर के कोयले जलाया करता था टूटे हुए गत्ते के साथ। हाउजी, नो टॉकिंग, नो टॉकिंग। करमदाद अंदर आता है और आगे बढ़कर कहता है, हजामत बनवा कर रखा करो बेरे, ये बूढ़े देखते हो अपने, यहाँ बड़े बड़े ऑफिसर लोग आकर ठहरते हैं, वो क्या कहेंगे। यासीन, एक अफसर तो अभी इस कमरे से चेकआउट करके गया है। हाउजी, बैठो बैठो, झाड़ू दो, ब्रश मारो, सिट डाउन, सिट डाउन। विल्सन बैठकर फिर ब्रश करने लगता है। तीनों बैरे कहके लगाते हुए और सीटी बजाते हुए बाहर चले जाते हैं। विल्सन ब्रश करते करते एक ब्रश अपने पलंग को मारता है और फिर जाकर कबर्ड पर ब्रश फेरता है, उसको भी एक ब्रश रसीद करता है, पट खोलकर अंदर की सफाई करता है, फिर चीख मारकर सीधा खड़ा होता है। विल्सन, हाय हाय हाय, 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपीज, चूमता है। वाह वाह वाह, 100 ग्रीन नोट, 100, आहा। गज्जी रजिस्टर और चाबियों का गुच्छा लेकर अंदर आती है। गज्जी, विल्सन, विल्सन। विल्सन, यस मिस। गज्जी, ये काम हो रहा है। विल्सन, नो काम, नो काम। गज्जी, तुम्हें क्या कहकर गई थी मैं, बोलो। विल्सन, मिस गज्जी, प्लीज बुक दिस रूम फॉर 2 days। गज्जी, बकवास बंद करो। तीनों बैरे फिर अंदर दाखिल होते हैं, इसी तरह कह के लगाते हुए, उनके हाथों में जूतों का हार है। विल्सन, शट अप, वो और ऊंचे ऊंचे कह के लगाते हैं। विल्सन, आई से शट अप, सब खामोश हो जाते हैं। मिस गज्जी, ये कमरा 2 दिन के लिए और बुक कर दीजिए मेरे लिए। तीनों बहरे हा 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 हा।
विल्सन नोट देकर, एडवांस मनी, बुक द रूम प्लीज, टेक इट। गज्जी, लेकिन तुम्हारी कोई छुट्टी नहीं। यासीन, यस यू आर ऑन ड्यूटी। विल्सन टेलीफोन मिलाकर पूछता है, विल्सन, इरफान साहब, मैं विल्सन हूँ जी, मेरी अर्जी थी जी, आ गई है जी मंजूर होकर। कितने दिन की जी? ये ज़रा मिस साहब से बात कीजिए। गज्जी फ़ोन लेकर कान से लगाती है और फिर कहती है, गज्जी, ऑल राइट इरफान, ठीक है। विल्सन, ये आप एडवांस में रखें हमारा 100 रुपया। गज्जी, नो सर, इट इज़ ऑल राइट। तीनों बैरे जाने लगते हैं। विल्सन, बैरो, ठहरो। तीनों रुक जाते हैं। इधर आओ। तीनों आते हैं। यू मे गो मिस साहिब। गज्जी चली जाती है। हाउजी, रूम नंबर 140 के सिगरेट दे आऊं? मेरी जेब ही में पड़े हैं। विल्सन, अल्लाह रखा, ठहरो। हाउजी, सिगरेट 140 के, वेरी इंपॉर्टेंट। विल्सन, तुम नहीं जा सकते। पलंग पर बैठता है। हाउजी, मेरी ड्यूटी है इधर। यासीन, हाउजी, गेस्ट इज ऑलवेज राइट। हाउजी, यस सर। विल्सन, हमें पलंग पर लिटा दो। कम ऑन बेरा हाउजी। हाउजी उसको अदब से पलंग पर लिटाता है। करमदाद। करम, जी साहब, हजूर अली किबला वकाबा। विल्सन, हमारा बाजू दबाओ ज़रा आराम से। यासीन, मैं दबाऊं सर? विल्सन, यस। करमदाद जाने लगता है। तुम हमारे सर के नीचे तकिए रखो। करम, बहुत बेहतर हजूर, बहुत बेहतर। तकिए ठीक करता है। यासीन, सर आपका टेम्परेचर बहुत अच्छा है। बड़े बड़े लोगों का टेम्परेचर आमतौर पर ऐसे ही होता है। विल्सन, हाउजी, हमारे बूट पॉलिश करो। हाउजी, वो तो नीचे गए सर काउंटर पर। विल्सन, ब्रश लेकर हमारी स्पंज चप्पल ही को साफ करो। हाउजी, यस सर। विल्सन, करमदाद। करम, जी जनाब। विल्सन, हमको अखबार से हवा करो। यासीन, एयर कंडीशनर तेज कर दूं साहब? विल्सन, नहीं, इसको अखबार से हवा करने दो। करमदाद हवा करने लगता है। हाउजी, सर आपके चप्पल बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड, नंबर 1। कर्नल निपियर साहब के पास भी ऐसे ही चप्पल थे। विल्सन, बस तुम साफ किए जाओ। यासीन, सर आप फ्रूट जूस पियेंगे? विल्सन, नहीं भाई, खा पी कुछ नहीं सकते, बस ये 2 दिन का किराया ही मिला है। यासीन, नहीं सर, आप तो कसरत नफ्सी फरमाते हैं, आपको क्या परवाह है। करम, जनाब अली, ये आपका अखबार बहुत अच्छा है, बड़ा लचकदार है सर, बड़ी हवा फेंकता है। विल्सन, झले जाओ झले जाओ झले जाओ। यासीन, आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है सर, जी चाहता है बस इंसान सुने जाए और सुने जाए। विल्सन, और हम अच्छे नहीं हैं? यासीन, आप भी बहुत अच्छे सर, जी चाहता है इंसान आपकी इज्जत किए जाए और किए जाए। हाउजी, जरा सा ब्रश लगने से क्या चमकने लगती है, 100 कैंडल पावर का बल्ब लगती है, बड़ी फर्स्ट क्लास है, सेंट%। विल्सन, यासीन, तुम हमारी हैसियत से तो वाकिफ ही हो और तुम सब अच्छी तरह से जानते हो कि हम बैरे हैं। सब नो सर, नहीं जनाब अली, एक साथ कहते हैं। यासीन, वो जी बात यह है सर कि इस वक्त आपकी फेस वैल्यू बड़ी है। करम, बड़ी मोहब्बत सी जाग रही है जनाब अली हमारे दिलों में आपके लिए। विल्सन, हम तो नहीं कहते हमसे मोहब्बत करो या हमारी इज्जत करो। यासीन, वो जी दरअसल साहिब हैसियत और तवंगर लोग किसी को मजबूर नहीं करते अपनी इज्जत करने कराने के लिए, वो तो बस इज्जत करने वालों के दिल में खुद ब खुद एक जज्बा सा पैदा होने लगता है सर। कोई खुश नसीब होता है तो उसकी साल बाद रात पूरी हो जाती है सर। ईद के रोज़ बड़े आदमियों के गले मिलने का एक बहाना सा मिल जाता है। करम, हमारे लिए तो हजूरे वाला आज का दिन भी ईद से कम नहीं। विल्सन, पीछे खड़े होकर अखबार झलो, समझे? यासीन, सर आपकी उंगलियां बहुत खूबसूरत हैं, नौजवानी में मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी सर, उसकी उंगलियां भी ऐसी ही खूबसूरत थी। मैं पंसाल नवीस का बेटा था सर, और वो बहुत रईस खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। मैं नहर किनारे बैठकर उसे डाक बंगले में आते जाते देखता था जी। बिल्कुल आप जैसा भोला सा चेहरा था, छोटे छोटे दाग उसके चांद जैसे चेहरे पर बहुत ही प्यारे लगते थे, हार सिंगार के फूल की तरह। एक दफ़ा नहर से बाल्टियां भर भर कर मैंने उनकी कार धोई थी तो उसने अपने पर्स में से मुझे 1 रुपया निकाल कर दिया था। आप जैसी खूबसूरत उंगलियां थीं उसकी सर। मैं उससे मोहब्बत तो न कर सका सर, पर उसकी इज्जत मेरे दिल से आज तक नहीं गई।